کے لیے اپنی امت کے لیے اس قدر جو ہے کہ ہمدردی تھی کہ وہ تو چاہتے تھے کہ ہر ایک بندہ جو ہے کہ ایمان لیا ہوئے تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. تو یہاں پر بھی وہ دعا کرتے ہیں کہ پہلی دعا کی وہ کہ اس شہر کو امن والا بنا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ مجھے اور میرے اولاد کو بت کی پرستش سے بچا, کیونکہ یہ بت جو ہے بہت سے لوگوں کو بھٹکا دیا ہے نا. اے میرے اللہ, جو لوگ میرے فرما برداری کیے, جو میرے تابع میں رہے, جو میری تابعداری کیے, انہیں بھی, اور جو نافرمان نکلے جنہوں نے بت کی پرستش کی, اے اللہ انہیں بھی تو معاف کر دے, کیونکہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے, معاف کرنے والا, رحم کرنے. اے اللہ انہیں بھی تو معاف کر دے. یہ ہے اللہ کے رسول, اللہ کے خلیل. آگے, اے ہمارے پروردگار, میں نے اپنے کچھ اولاد اس بے کھیتی کے وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے. اے ہمارے پروردگار, یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھے, بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے پروردگار, میں نے اپنی اولاد کو اس جگہ پر جہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہوتی, کیا تھا اس جگہ پہ, جیسا ابھی ہم لوگوں نے بات کیا, تو جنگل تھا, ویرانہ جنگل تھا, ہے نا. وہ تو قبیلہ جرہم وہاں سے گزرا, وہ وہاں پہ ٹھہر گئے, تو وہاں پہ لوگ رہنے لگے, نہ وہاں پہ کوئی کھیتی, نہ کوئی ایسا کچھ بھی کاروبار کا کچھ تھا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں آپ کے حکم سے اپنی اولاد کو یہاں ایسی جگہ پہ ہم نے بسایا, اور بے شک یہ حرمت والی جگہ, کیونکہ اس جگہ پر جب اب تو نے اپنا گھر بنا دیا, یعنی کہ خانہ کعبہ بن گیا, اس کی حرمت تو بڑھ گئی, بہت زیادہ بڑھ گئی, جس پہ تیرا وعدہ ہے. تو میں نے ایسی جگہ پہ اپنی اولاد کو بسا دیا, چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, یہاں پہ میری اولاد رہ رہے ہیں. تو جو ہے نا کہ ان کو نماز قائم کرنے والا رکھیو, یعنی کہ یہ میرے اولاد انہیں نماز قائم کرنے والا رکھے. الحمدللہ میرے عزیزوں, یہ غور کرنے والی بات ہے کہ ہم نماز آج پڑھتے ہیں, الحمدللہ. ہمارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات ان پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی, اور وہ 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے اور قیامت تک رہے گی. لیکن نماز جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی ہے, نماز حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی. ہاں, آج ہم جس 5 وقت کے اپنے اپنے وقتوں میں پڑھتے ہیں, جو وقت کا مقرر ہوا آپ کے معراج والی رات, اس طریقے سے وہ وقت مقرر نہیں تھا, وہ وقت مقرر نہیں تھا. عموماً نماز رات میں ہوا کرتی تھی, ہاں کچھ نماز دن میں بھی ہوتی تھی, ٹائم کا, وقت کا مقرر نہیں تھا. ورنہ نماز تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہے, اور اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے ہے, مسلمان حضرت آدم علیہ السلام سے. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جو ہے کہ محض 1400 سال پہلے, 1500 سال پہلے اسلام آیا, ایسا نہیں. اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہے, ہمیشہ سے رہا. ہاں, لوگ بگڑتے گئے, شیطان لوگوں کو بھٹکاتا رہا, لوگ اپنا راستہ بھول گئے, گمراہی میں چلے گئے, اور جب گمراہی زیادہ بڑھی, اللہ نے اپنے پیغمبر, اپنے انبیاء کرام کو ان کے بیچ میں بھیجتے رہے کہ تاکہ جو ہے کہ توحید بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں. کچھ مانے, بہت سے نہیں مانے, سب کے ساتھ پریشانیاں آئیں. لوگوں نے جب کوئی انبیاء آئے, ان کے اوپر جو ہے کہ قوم نے بڑا ان کو پریشان کیا. بہرحال, تو یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو بت ہے نا, ان کے بت سے ہمیں, مجھے اور میرے اولاد کو اپنی پناہ میں رکھیو, یہ بت بہتوں کو بھٹکا چکے ہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معافی بھی مانگا کہ جو میرے ماننے والے ہیں, جنہوں نے بت کی پرستش نہیں کی, انہیں بھی معاف فرما. بے شک وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جن لوگوں نے بت کی پرستش کی, اللہ انہیں بھی معاف کر دے. اللہ اس کا جواب دیا ہے, آگے ہم لوگ بات پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو اس جگہ پر آباد کیا جہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہوتی تھی, لیکن بے شک یہ حرمت والی جگہ ہے کیونکہ تیرا گھر ہے نا, ہم نے آباد کیا. اب جو ہے کہ میرے بچوں کو جو نماز ہے, انہیں قائم رکھو, نماز میں انہیں قائم رکھو, بھٹکے نہ, یہ بھٹکے نہ, نماز قائم رکھنے والا رکھو. اور کچھ لوگوں کے دلوں میں ایسی انسیت, ایسی محبت, ایسی جذبات ڈالیو, ایسا علم ڈالیو, ایسی روشنی ڈالیو کہ وہ بھی نماز قائم کریں, وہ بھی ہمارے بچوں کی سنیں, وہ بھی ایمان والے ہو جائیں, وہ بھی مسلمان ہو جائیں, ہے نا. اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرمائی, یعنی کہ پھل کیا, بہترین غذا, تو بہترین غذا عنایت فرمائی تاکہ وہ شکر گزاری کریں. آج بھی اگر دیکھا جائے عرب میں, مکہ میں, جبکہ وہاں پر کوئی ایسی کھیتی ایسا نہیں ہوتی, لیکن وہاں پر عمدہ سے عمدہ پھل ہے, عمدہ سے عمدہ پھل ہے, عمدہ سے عمدہ بہترین کھانے ہیں, اور ہر طرح کے لذیذ کھانے ہیں. اور ایک برکت اللہ نے اس میں اور عطا فرمائی کہ آپ کتنا بھی کھا لو, ہے نا, وہ آپ کے لیے بڑی فضیلت والی ہوتی ہے, برکت والی ہوتی ہے.
रहमत वाली होती है, उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह, अगर आप ईमान और यकीन के साथ हैं तो बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमने जो है कि अपने बच्चों, अपनी औलाद को इस बेखेती वादी में तेरे हुर्मत वाले घर के पास बसाया है, ऐ हमारे परवरदिगार, या इसलिए कि वह नमाज कायम रखे, नमाज कायम रखे। बस तो कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों की रोटियां इनायत फरमा, ताकि यह शुक्रगुजारी करें, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कर रहे हैं। आगे, ऐ हमारे परवरदिगार, तू खूब जानता है कि जो हम छिपाएं और जो जाहिर करें, ज़मीन व आसमान की कोई चीज़ अल्लाह पर पोशीदा नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, बेशक सच कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह, तू सब जानता है, ज़मीन और आसमान की तमाम चीज़ों को तू जानता है और इसके दरमियान रहने वाले के हर पोशीदा राज को भी तू जानता है। ऐ अल्लाह, मैं ये जो दुआ कर रहा हूँ, मेरा जो मकसद है, मेरी जो ख्वाहिशात है, मैं जो इसके पीछे जो सोच रहा हूँ, तू जानता है, तू जानता है, तुझसे कोई चीज़ छिपा नहीं, तुझसे कोई चीज़ छिपा नहीं। तो देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस तरीके से अपनी औलाद के लिए और जो ईमान वाले, जो मुसलमान होंगे, उन तमाम के लिए दुआ कर रहे हैं। हालांकि वो दुआ उनके लिए भी कर रहे हैं जो नाफरमान है, और अल्लाह ने इसका जवाब दिया। अल्लाह ने कहा है कि मैं दूंगा, सबको दूंगा, जो शिर्क कर रहे हैं, जो कुफ्र पर हैं, जो गुनाह पर हैं, जो गैर इस्लाम वाले हैं, जो इस्लाम वाले नहीं है, उनको भी मैं दूंगा, मैं ही देता हूं उनको, बेशक देता हूं। अल्लाह ने जवाब दिया है, मैं ही देता हूं, बेशक अल्लाह ही देता है। और अल्लाह ने जो है कि वो सब चीज़ों को दे भी रहा है, तमाम मेहरबानियाँ भी अता फरमा रहा है, तमाम नेमतें भी दे रहा है ना। और उसके इससे पहले वाले पार्ट में, यानी कि इन तमाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं, इससे पहले अल्लाह ने बताया है, हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि अल्लाह ने अपनी तमाम नेमतों के बारे में बताया कि देखो मैंने किस किस तरीके से तुम्हें तमाम चीज़ें दी हैं, अनगिनत चीज़ें कि तुम गिन भी नहीं सकते। बेशक बात तो सही। तो अल्लाह ने कहा है कि हम तो देंगे, सबको देंगे, लेकिन हाँ, जो मेरा फरमा बरदार रहा, जो है कि ईमान पे रहा, उनका आखिरत मुकाम जो है वो मुकाम बेहतर है, बहुत बेहतर है, और जो नाफरमान रहे उनका आखिरत मुकाम बहुत बुरा है। ओके, आगे, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल व इसहाक अलैहिस्सलाम अता फरमाया। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक यानी कि दो औलाद से नवाजा है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी हम लोगों ने पढ़ा ही है कि बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ, हज़रत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से तो उनको औलाद नहीं हुई, क्योंकि एक अरसा गुजर गया था, कोई औलाद नहीं हुई। उस वक्त जो है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ किया था, उस वक्त भी दुआ किया था। हम लोगों ने अभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जो थोड़ा सा पढ़े हैं, बहुत हम लोग शॉर्ट में पढ़े ना, तो बहरहाल उस वक्त भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ किए थे कि अल्लाह जो है कि हमें भी औलाद से नवाज दे और बेटा हो, नेक साले मोमिन बेटा हो, है ना। तो अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमाई थी, और जो है कि फिर उनका निकाह हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ, हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से बेटा हुआ। मगर अल्लाह के हुक्म से फिर उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जबकि गोदी में थे, बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ यहाँ पर इस जगह पर छोड़ आए थे जहाँ पर आज ये दुआ कर रहे हैं। उसके बाद हालांकि वो भी उम्र तकरीबन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 80 वर्ष की हो गई थी, तकरीबन, ऐसा पढ़ने से मालूम होता है। उस उम्र में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हुए थे, तकरीबन 80 वर्ष की उम्र में, समझ गए ना। और इसके बाद फिर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम भी हुए। तो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में हम लोगों ने आगे पढ़ा हुआ है कि जब कौम लूत की तबाही और बर्बादी और अल्लाह का अजाब का वक़्त आ गया, तो अल्लाह ने अपने फरिश्तों को भेजे थे। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए थे, जिस पर हम लोगों ने पढ़ा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस तरीके से जो है कि उनके लिए खाना पेश करने के लिए उन्होंने तुरंत गए और जाकर करके गोश्त बनाया और गोश्त बना के उनके सामने ले आए। मगर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम चूँकि फरिश्ते थे, उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम डर गए और बीबी सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी, वो भी खौफ में आ गई कि खाना क्यों नहीं खाते। एक सेकंड होल्ड करेंगे, कुछ है। तो जो है कि उस वक्त में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पेशेंट को उनको खुशखबरी दी थी कि जो है कि आपको एक औलाद होगा जिसका नाम इसहाक होगा, ठीक है ना। तो वो भी काफ़ी बड़ी उम्र में हुई थी। तो उस वक्त तो बीबी सारा हंसी भी थी, मगर अल्लाह का फैसला था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम बताया कि नहीं, ये तो अल्लाह का फैसला, हो क्या रहेगा। बीबी सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहीं भी थी कि मैं बांझ, मुझे कैसे होगा, मुझसे तो कोई औलाद होने का उम्मीद ही नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी कहे कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे कैसे औलाद होगा। मगर अल्लाह के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं ना। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खबर दे रहे हैं कि होगा, ऐसा होगा, तो बहरहाल तो काफ़ी बड़ी उम्र में फिर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम हुए। तो यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यही कह रहे हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल व इसहाक अलैहिस्सलाम अता फरमाए। कुछ शक नहीं कि मेरा पालनहार अल्लाह दुआओं को सुनने वाला है। अब यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी उस दुआ को दोहरा रहे हैं जब उनको कोई औलाद नहीं था, और अल्लाह ने उनको औलाद से नवाजा।
اور वो भी उस वक्त नवाजा जबकि कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि काफ़ी बड़ी उम्र हो गई थी। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम अता फरमाए। कुछ शक नहीं कि मेरा पालनहार अल्लाह दुआओं को सुनने वाला, बेशक तू दुआओं को सुनने वाला। उन्होंने अभी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तमाम दुआएं मांगी ना, तो इस यकीन के साथ कह रहे कि बेशक मैं तुझसे दुआ मांग रहा हूँ तो कबूल करेगा, तूने इससे पहले भी कबूल किया। आगे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ऐ मेरे पालने वाले मुझे नमाज का पाबंद रख। अब देखो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के खलील, और तो और अल्लाह के हर आजमाइश में वो कामयाब और खरे उतरे 100%। और यहाँ तक कि अल्लाह ने उनको अपना खलील, अपना दोस्त का जो है कि उन्होंने लक़ब दे रखा है। और फिर अल्लाह ने फिर उनको जो औलाद नवाज़े हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, उनको भी नबूवत का ऐलान कर दिया। अल्लाह ने उनको बशारत दे दी, बता दी है कि वो भी नबी होंगे। इतना होने के बावजूद भी देखिए एक अल्लाह के रसूल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे दुआ करते हैं। कभी हम अपने दुआ पर भी गौर करें। ऐ अल्लाह, इस आयत के वसीले से मैं भी दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमारी तमाम मुश्किलात परेशानी को दूर फरमा, हमें हिदायत से नवाज़े और क़यामत के रोज़ हमारे लिए आसानी फरमा और क़यामत की आखिरत की भलाई अता फरमा, और हमें जन्नतुल फिरदौस आला में मक़ाम हमारा बनावे। हमारी औलादों को भी अल्लाह ताला हिदायत नवाज़े, उन्हें अच्छी किस्मत अता फरमा, उन्हें ईमान पर जिला ईमान पे ही उठा, हम सबको जो है कि नेक मोमिन बना। आमीन। तो दोस्तों आमीन। तो दोस्तों ये जो है कि अल्लाह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस तरीक़े से अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह, तू दुआ को सुनने वाला है, तूने मेरी पहली भी दुआ सुनी, हज़रत इस्माइल, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को तूने मुझे दे करके, तो मेरी दुआ को कबूल फरमा। अब इसके बाद कह रहे हैं, ऐ मेरे पालने वाले, ऐ मेरे अल्लाह, मुझे नमाज का पाबंद रख। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, मुझे नमाज का पाबंद रख। हम क्या नमाज के पाबंद हैं? क्या हम नमाज को कायम कर रहे हैं? अल्लाह हमें भी नमाज का पाबंद रख, जिस तरीके से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की तुझसे अपने नमाज की पाबंदी के लिए और अपने औलाद की नमाज के लिए। अल्लाह हमें, मुझे और मेरे औलाद को भी नमाज का पाबंद रखे। आमीन। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, ऐ मेरे पालने वाले, मुझे नमाज का पाबंद रख और मेरे औलाद से भी, ऐ हमारे रब, मेरी दुआ कबूल फरमा, ऐ मेरे रब, मेरी दुआ को कबूल फरमा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, इतनी तमाम दुआएं मांगे अपने औलाद के लिए। कहा जाता है कि जब भी दुआ मांगो तो अपने और अपने औलाद के लिए भी दुआ मांगो, अपने वालिदैन के लिए भी दुआ मांगो। बेशक आगे, ऐ हमारे परवरदिगार, मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को भी बख्श दे और दीगर मोमिनों को भी बख्श जिस दिन हिसाब होने लगे। अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की देखिए हम कि अपने कौम के लिए, अपनी उम्मत के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए किस कदर जो है कि वो दुआ करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे बख्श दे। अल्लाह का खलील बोल रहा है, अल्लाह का खलील बोल रहा है, मुझे बख्श दीजिए। कभी उनसे कोई गुनाह नहीं हुआ, फिर भी वो कहते हैं। तो वो जो कहते हैं कि मेरे माँ बाप को भी, तो माँ बाप के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि वो तो ईमान नहीं लाए, मगर फिर भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप के लिए दुआ करते हैं। उनके बाप ने जबकि उनको निकाल बाहर कर दिया था, फिर भी दुआ करते हैं। हालांकि इसमें ये भी बात में आती है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिर बाद में मना किया गया अल्लाह ताला की तरफ से ही कि आप मत दुआ मांगिए, आप दुआ अपने बाप के लिए मत मांगिए। इसमें दो बातें हमने देखी और क्या है कि या अल्लाह की तरफ से जो बात हुई कि अब आप मत दुआ मांगिए, तो या तो ये उस वक्त बोला अल्लाह ने कहा कि जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया, या फिर उनके वालिद बिल्कुल अल्लाह के दुश्मन हो गए थे, तो अल्लाह ने कह दिया था कि अब आप उनके लिए दुआ मत मांगिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है ना। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहे भी थे कि अल्लाह मुझे क़यामत के रोज़ शर्मिंदा ना कीजिए। अपने वालिद के लिए बड़े हमदर्द थे ना, हकीकतन यही है, बहुत हमदर्द थे बेशक। तो अल्लाह ने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो मैं शर्मिंदा नहीं तुम्हें करूँगा। हदीस से मालूम होता है कि हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बताया कि बेशक क़यामत के रोज़ होगा ये कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास एक कीड़ा नुमा कुछ आएगा और उनके पैर में लगेगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको ऐसे उठाएंगे और जहन्नम में डाल देंगे। दर हकीकत में वो कीड़ा उनके वालिद ही होंगे, उनके बाप ही होंगे। और अल्लाह अपना वादा इस तरीके से पूरा करेगा कि इब्राहिम, मैंने तुझसे क्या वादा तो पूरा किया, मैंने तो तेरे बाप को जहन्नम में नहीं फेंका, तूने खुद फेंका। बहरहाल तो अल्लाह मालूम। तो जो है कि यहाँ पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है कि कहते हैं कि मुझे बख्श दीजिए, ये कि यह है अल्लाह का खौफ। इसमें मेन मकसद जो हमको कहने का है वो ये है कि अल्लाह का खौफ। देखिए एक अल्लाह का रसूल है, खलील है, फिर भी उसको इतना खौफ है, वो कहता है कि अल्लाह मुझे बख्श दीजिए। और हम लोग दुनिया के तमाम गुनाह करते हैं, तमाम गुनाह में मुलविस हैं। कोई एक ऐसा भी अमल नहीं है जिसके ऊपर हम यकीन कर सकें कि ये अमल मेरे लिए जो है कि बख्शिश का ज़रिया बनेगा। लेकिन ये तो अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला कहता है कि हम रहीम हैं, बेशक वो रहीम है, जाने हमारे किस अमल से वो खुश हो जाए। और हम उसी अमल के वसीले से अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें बख्श दीजिए। तो खैर यहाँ पर वो कहते हैं कि हमें बख्श दीजिए और मेरे माँ बाप को भी और दीगर मोमिनों को भी बख्श दीजिए जिस दिन हिसाब होने लगे। यानी कि वो दिन कौन सा? क़यामत, क़यामत का दिन, जिस दिन के लिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खौफ है, डर है और अपने तमाम उम्मत के लिए उनको खौफ है।
اور ڈر ہے